Good morning, friends. Hope you are all fine. Right? So, how is the morning for you? Good, no? So, students, today we are going to learn the last concept of the chapter number 4. So, up to here, we have learned a lot of things. The first we have learned is regarding e commerce, right? Then we have learned how to tackle with the e commerce information, right? And then we have going to learn today is the topic outsourcing. Right, the topic was, the chapter was communication, e-commerce and outsourcing. So we have learned the topic of communication, what are the steps for the communication, right, remembering, no? And then we have learned the topic of e-commerce, what is electronic commerce, how to do, what are the requesting element for it, what are the safety measures, everything we have learned in a very detailed way. Again, in every class I am saying to you, the most important thing is that you have to read this, then only we can understand this particular topic. So read this topic, right? It makes very easy for you, you can remember in a very easy way. So read the topic, right? Then you can get the better answers. Now the friends, the topic is outsourcing. Now what is outsourcing? We can take a small example of outsourcing. Suppose you are getting a large number of homeworks by different teachers. So what you will do? You say that your brother or sister, you say to your brother or sister, do some of the work for you. Definitely they will help you out. So that is known as outsourcing. That means your work is done by some other people at less cost, at less time. That is known as outsourcing, in which some benefit is there. So here we don't have to do the homework. Here we have to do some different work. I think you have heard the word of call care center, right? In every big companies, you can see some toll-free number is there. By dialing that toll-free number, we communicate to a particular call center, and the call center person will say, suppose Toyota is a Japan company, right? Toyota is a Japan company. Reliance is an Indian company. But both of the call centers operates in India. It is located in Mumbai. Why? Because Toyota people know that if they employ more number of people in Japan, the cost is very high. But in India, we know that due to more population, our wages are less as compared to that country. So the Toyota people says that why not we start a call center in India or in China. So according to that, the business is outsourcing. You know, a lot of call centers are there. These call centers do this activity like insurance service, big bank service. Everything is done with the help of outsourcing. So if we dial a number, you get to a call center, right? That is known as an outsourcing. So let's see, very interesting topic, outsourcing. Ready? Okay. When miscellaneous work or process is handed over to the other group by the business group as per the contract for prescribed time, it is called outsourcing. The word is very clear, miscellaneous. Miscellaneous means, you know what? The small the work which is have less capacity, the work which can be done by anyone, not the main work, the subsidiary work. When miscellaneous work or process is handed over to the group by business group as per the contract, and it is for a specified time limit, it is called outsourcing. So what is, friend, outsourcing? When miscellaneous work or process, when miscellaneous work or the process have handed over to some other business, handed over to the other business by the business group as per the contract for prescribed time, it is called outsourcing.
So we have learned the definition of outsourcing. What is the definition? When miscellaneous work is handed over to another group of business people by the business group for a particular period of time and as per the contract, it is known as outsourcing. Is it clear to you? Now, continue. Outsourcing is necessary to concentrate on main activities of a company. Right? We are seeing that what happened here, we have seen that the big businessmen keep the drivers on their car, like BMW, Mercedes. They are roaming in the BMW, Mercedes, Porsche and all, but they keep the driver. And we common man think that they are purchasing this big car of 60 lakhs, 80 lakhs, 1 crore, and they are keeping the driver in that. Why don't they why don't they drive the car? It's a pleasure to drive the BMW, Mercedes or the Audi, right now. But these people hire a driver and the driver will look after the car and they just sit beside. It's a very common question. I also always find in my mind why they are doing like that. But when I come to little bit research on that, I come to know that these big business magnate people, they never waste time in driving the vehicle, seeing the traffic signal, who is coming from that side, who is coming from one side and all. They are just concentrating on one activity. Now, what is the difference between a common man and this type of big business magnate? Common man look after the vegetables. What is the price of vegetable? What is the price of fruits? Daily chores activity, right? Cooking activity, even the ladies also cooking activities and daily work. We are engaged in small activities. Check depositing, check withdrawal, amount depositing, amount withdrawal. That means we people, that is the common people, waste lot of time in thinking in the daily chores of our home. But this big businessman, what they will do, they appoint one person, they appoint one head servant, and the head servant will look after everything. So he will become free. It cost him money, but he earned more from other activities of business. You are getting what I want to say, right? So what they want to say, they can concentrate on the main activities of the business, right? Suppose you have been given some work, that this work, first work, second work, third work, fourth work. It's very common that not a single person can do all the four works. He will do 50% accurate in first work, second he will do 60%, third he will do around 70% in all. In fourth, may not he do. Karega hi nahi ho. Right? But what happens here? He do only one activity. If a person is giving only one activity, what he will do? He do the best in doing that. He will do the best because his mind is prepared for it. Right? You can take the example of Dhirubhai Ambani. The person sees the one activity at a time. Monday he looks after the Reliance Industries. Tuesday he looks after the Jio Industries. According to that, he has planned according to his mind that each and every day he will concentrate on a particular work. And we people, we middle class people, right, we are engaged in lot of things. So, right, so lot of issues also there. So let's see. When miscellaneous work or process are handed over to the other business group by the business group for a particular time period as per the contract, it is called outsourcing. So let's highlight for you what is what is outsourcing? When miscellaneous work or process
is handed over to the other group by the business group as per the contract for prescribed time. It is called outsourcing. Outsourcing is necessary to concentrate on main activities of a company. A business main activity is what? To earn more profit, right? To earn company's leadership. So outsourcing is very much necessary to concentrate on main activities of the company. Thus, companies outsource minor activities. Thus, company outsource minor activities. Beside this, some business units make outsourcing of intellectual work or even though it is their core activity. What they want to say? Beside this, इसके अलावा, some business unit make outsourcing of intellectual work. कोई कोई लोग तो जो मेन काम है जिसमें डेटा होता है वो सब, right? Intellectual work, even though their core activity. Outsourcing can done within a company or outside the company. कंपनी के अंदर भी कर सकते हैं और कंपनी के बाहर भी कर सकते हैं. चलो, तो क्या लिखा इन्होंने, वापस एक बार देख लेते हैं. What is outsourcing? When miscellaneous work or process handed over to some business group by the business group as per the contract for prescribed time limit, it is called outsourcing. Outsourcing is necessary. Outsourcing is necessary. क्यों necessary है? To concentrate on main activities of the company. Thus, companies outsource minor activity. ऐसा जरूरी नहीं है. Some companies even outsource the intellectual activities as even that it is a core activity. Outsourcing can be done within a company or outside the company. Within a company or outside the company. चलो, अब क्या है? अब किस तरह से आउटसोर्सिंग होता है, उसके नाम क्या है, दैट वी हैव टू लर्न. कंसेप्ट, रिक्वायरमेंट एंड फील्ड ऑफ बीपीओ. ये फुल फॉर्म पता है आपको बीपीओ का? बीपीओ का फुल फॉर्म है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग. जो बिजनेस का जो प्रोसेस है वो आउटसोर्सिंग है. बिजनेस क्या है? बहुत बड़ा वर्ड है, राइट? बिजनेस बहुत बड़ा वर्ड है. बिजनेस का पहला काम होता है टू क्रिएट द डिमांड. लोगों को जरूरत नहीं होती है लेकिन हम डिमांड पैदा करते हैं. आप जब शॉपिंग मॉल में जाते हो तो क्या होता है पता है आपको? हम आजू बाजू देखते हैं, राइट? और दूसरे जो खरीदते हैं हमारा ध्यान उस पर ज्यादा होता है. हमारे कार्ट में, हमारे शॉपिंग कार्ट में क्या है हम ज्यादा फोकस नहीं करते. हमारा डिमांड क्या है हम ज्यादा फोकस नहीं करते. वी सी द अदर पीपल कार्ट, अरे इसने ये लिया है मुझे भी लेना चाहिए, शायद इसमें ज्यादा फायदा है, तो वी परचेज दैट ऑल्सो. तो शॉपिंग मॉल का सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या है? वो कभी कभी हमें सामान फ्री में दे देते हैं, एक के साथ एक ले लो ऐसे फ्री में. तो हमें लगता है चलो हमें बहुत फायदा होने वाला है, तो हम ज्यादा सोच समझते नहीं है. फायदा भी होता होगा लेकिन ज्यादा सोच समझते नहीं और हम खरीद के लेकर आते हैं. और हमारा जो लिस्ट होता है, हम जो लिस्ट बनाते हैं व्हेन वी गो टू अ शॉपिंग मॉल और अ ग्रोसरी स्टोर, जब जाते हैं एक लिस्ट बनाते हैं, भाई मुझे ये चाहिए 500 ग्राम, ये चाहिए किलो एंड ऑल. ऐसा कुछ चलता ही नहीं है वहां पे. हमारी जो मर्जी हम खरीद के डाल देते हैं अंदर अंदर. बिस्किट भी बहुत सारे वैरायटी के ले लेते, जाम से बहुत सारे वैरायटी के ले लेते, कपड़े की जरूरत नहीं फिर भी कपड़े खरीद के लेकर आ जाते हैं. तो ये क्या है? What I want to say is that बिजनेस का मेन काम क्या है? इट क्रिएट्स द डिमांड. क्योंकि डिमांड नहीं होगा तो आगे काम चलेगा ही नहीं. वो कैसे करते हैं? एडवर्टाइजमेंट करते हैं, न्यूज़पेपर में डालते हैं, बहुत सारी चीजें बोलते हैं कि आप ईएमआई पे ले लो, कैसे भी करके ये सामान उनको बेचना है ना. पहले अगर आपको एक टीवी लेना होता था, टेलीविजन लेना होता था, तो आपको कैश देके लेना पड़ता है. यू हैव टू गिव द कैश एंड यू हैव टू गिव द टेक द मटेरियल. लेकिन आज क्या बोलते हैं? सर फ्री में लेके जाओ, फ्री में है, ईएमआई देना है आपको सिर्फ 6 महीने का. लेकिन भैया कटेगा तो आपके बैंक से ही कटेगा. लेकिन लोग वो समझते नहीं है
और फंसते जाते हैं। जरूरत नहीं है तो भी खरीदते हैं और डेप में आ जाते हैं। कर्जा इतना बढ़ जाता है, फिर आगे बहुत प्रॉब्लम आता है। बिजनेस का काम है कि वो क्या करता है कि डिमांड क्रिएट करता है, राइट, उसका काम है वो। चलो तो हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें पढ़ना है बीपीओ क्या होता है। देखो, BPO means to get the contractual service of external company or a group to complete special work or process of a company। मतलब क्या होता है, ए एंड बी, सपोज ए एंड बी, ए कंपनी है और बी दूसरी कंपनी है। तो अब ये क्या कर रहा है, ए क्या करेगा, ए विल गिव सम ऑफ द वर्क टू बी। बी का काम है ये कि चलो छोटा मोटा काम है, कस्टमर से कॉल आते वो लोग अटेंड कर लेंगे ऐसा। तो ए को अब सिर्फ इस पे फोकस करना है, सामान बेचने पे फोकस करना है, और बी किस पे फोकस करेगा, कस्टमर सर्विस पे फोकस करेगा। समझ में आया आपको? तो बीपीओ का मतलब क्या है, बीपीओ मीन्स टू गेट कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस ऑफ एक्सटर्नल कंपनी। एक्सटर्नल मतलब बाहर की कंपनी। अभी हमने आउटसोर्सिंग में पढ़ा था कि विद इन अ कंपनी के अंदर भी हम आउटसोर्सिंग कर सकते हैं। देख, मेरा डिपार्टमेंट है एचआर डिपार्टमेंट, मैं उसको भी दे सकता हूँ, देख भाई तेरे को संभालना है। लेकिन मेरा काम जब इतना बढ़ जाता है कि एचआर डिपार्टमेंट भी संभाल नहीं सकता है, तो आई हैव टू फाइंड सम अनदर कंपनी जो स्पेशलाइजेशन रखता है इस काम के ऊपर। So what we can say, BPO means to get the contractual service of external company or group to complete special work or process of a company. So what we can say, BPO means to get a contractual service of external company or a group to complete special work or process of a company. So what we can say, BPO. BPO means to get an contractual, BPO means an external, BPO means to get an, अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, BPO means to get an contractual services from a group, within a group or the group to complete special work or the process of a company. Example क्या है, the main purpose of the company that want to outsource the work of call centers or data entry is to reduce their expenditure। जो कंपनी ये देती है उसका भी तो कोई मोटिव होगा। क्या मोटिव है? उसका एक्सपेंडिचर कम हो जाता है, क्योंकि उसको ही हैज टू कीप परमानेंट एम्प्लॉयज, जिसको सैलरी देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा। तो ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे दे देते हैं, चलो भाई तुम ये काम करो, आपका कॉन्ट्रैक्ट ये रहेगा। The main purpose of the company that want to outsource the work of the call center is to reduce their expenditure। देखो क्लियर लिखा है, तो पहला दो लाइन क्या लिखेंगे, business process outsourcing means to get a contractual service within a group or with the external group to complete the special work or the process of a company। क्या है example, the main purpose of the company that wants to do the outsourcing is to reduce their expenditure। मेन काम तो वही है भैया, खर्चा कम करना। समझ में? खर्चा कम करना। The main reason of popularization of outsourcing is that human resources for such work are available at lower rate in some country, right? अमेरिका के कितने बड़े बड़े कंपनी हैं, जैसे कि गूगल है, फेसबुक है, राइट, और भी बहुत सारी कंपनी है, बहुत लिस्ट है उसके। ये दो कंपनी के बारे में डिस्कस करते हैं, गूगल और दूसरा कौन सा, फेसबुक। ये दोनों अमेरिका की कंपनी है, लेकिन इसका काम होता है चाइना में और इंडिया में। एप्पल हम बोलते हैं, एप्पल का जो फोन है अमेरिका का है, लेकिन बनता एप्पल में है, बनता अमेरिका में नहीं है, बनता तो चाइना में बनता है, और इंडिया में भी अब शुरू होने वाला है। क्या रीजन है? क्योंकि अमेरिका के लोगों को हमें ज्यादा देना पड़ता है वेजेस। उनका पर आवर वेजेस है $20, $20। अब $20 आप मल्टीप्लाई करोगे ना इंडियन रुपीस में, तो आपको मिलेगा 1500 रुपए से ज्यादा।
पता चल रहा है आपको? 1500 रुपए उसको आवर का देना पड़ेगा, 1 घंटे का। उतने में तो इंडिया में तो पूरा दिन आदमी काम करने को तैयार हो जाता है। 1500 रुपए में तो ज्यादा है, 15,000 में भी लोग काम करते हैं। सही बात है कि नहीं? अब सोचो 10 घंटे अगर काम कराना है अमेरिका के बंदे से तो देना पड़ेगा 15,000 रुपए 1 दिन का। लेकिन इंडिया में वो चीज पूरा महीना चल जाएगा। अब फायदा ही फायदा है, इसलिए ये काम ज्यादा इंपॉर्टेंस लेता है। पता चला? जैसे कि चाइना है, इंडिया है, जहां पे लेबर सप्लाई इज मोर, बराबर। तो व्हाट इज बीपीओ? बीपीओ मीन्स टू गेट अ कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस। BPO means to get a contractual service from the group only or from the external company to complete a special process of the company. Example, क्यों करते हैं ये? The main purpose of the company that want to outsource the work, the main purpose क्या है? The main purpose of the company that want to outsource the work of call centers of the data is to reduce their expenditure कम करना। The main reason of popularization of, क्या रीजन है? The main reason of popularization of human resources for such work are available at a lower rate. मेन रीजन क्यों इतना पॉपुलर हुआ? क्योंकि लोअर रेट है। कहां पे? इन सम कंट्री लाइक इंडिया, चाइना, विच हैव लार्जर पॉपुलेशन एंड गेट द फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ बीपीओ। तो क्या पढ़ा हमने? बीपीओ मीन्स टू गेट द कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस ऑफ एक्सटर्नल कंपनी और ग्रुप to complete the special process or the company. The main purpose of the company that wants to outsource the work of call center or data is to reduce their expenditure. The main reason of popularization of outsourcing is that human resources for such work are available at a lower rate in some countries. Some countries like India, China, who have large population get the first preference for BPO, क्योंकि इन लोगों का कोटिंग रेट बहुत कम होता है, कॉन्ट्रैक्ट रेट बहुत कम होता है। तो समझ में आ गया बीपीओ का मतलब? बीपीओ मतलब एक कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस होता है जिसमें बड़े बड़े ग्रुप्स अपना जो छोटे मोटे काम होते हैं, मिसलिनियस वर्क होते हैं, वो दूसरे को दे देते हैं। राइट? मेन पर्पस क्या है बिजनेस ग्रुप का? टू रिड्यूस देयर एक्सपेंडिचर। और ये क्यों पॉपुलर हुआ? क्योंकि ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री लाइक इंडिया एंड चाइना, वहां पे रेट बहुत कम है। चलो आगे बढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट्स ऑफ बीपीओ, हमने याद है रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंटरनेट देखा था, तो उसमें हमने क्या देखा? सबसे पहले तो बोलो बोलो, सबसे पहले वेबसाइट, www वेबसाइट। सेकेंड इंटरनेट, नेट के बगैर होगा नहीं, ये वीडियो भी आप कैसे देखते हो? विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ओनली। तीसरा क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड, ये 4 चीज है इसके मेन काम। अब आगे बढ़ते हैं तो रिक्वायरमेंट्स ऑफ बीपीओ। बीपीओ की क्या जरूरत है? BPO reduces the workload of employees of a company from the responsibility of their daily minor work. देखो क्लियर लिखा है, क्या लिखा है? BPO reduces the workload. BPO क्या करती है? वर्कलोड कम कर देती है एम्प्लॉयज का, फ्रॉम द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट डेली माइनर वर्क, छोटे मोटे काम से उनको छुटकारा मिल जाता है। So these employees can focus more to the productive activities and customers. अब मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। राइट? घर पे राइट आपकी मम्मी हाउस वाइफ है, राइट, घर पे काम करती है। सपोज आपकी मम्मी कहीं पे राइट बैंक में काम करती है या स्कूल में पढ़ाती है या और कहीं पे मम्मी का जॉब है। तो अब मम्मी का सैलरी थोड़ा ज़्यादा ही होगा ऑब्वियसली। तो मम्मी क्या करेगी? उसके बदले में घर के काम के लिए किसी मेड को रख लेगी, किसी सर्वेंट को रख लेगी। तो बोलो फायदा है कि नहीं? यस, क्योंकि मम्मी को अगर सपोज 15,000 भी मिल रहा है, उस 15,000 में से अगर 3,000 भी मेड को देना है तो भी मम्मी के पास कितना बच जाता है? 12,000 रुपीज। आया समझ में? तो अब 12,000 मम्मी एक्स्ट्रा कमा रही है।
तो ऐसा भी हमको लगता है, हमारा जो छोटे मोटे काम है हम और किसी को सौंप सकते हैं. व्हाट वी कैन से, बीपीओ reduces the workload of employees of a company from the responsibility of the daily minor activity. तो क्या हो सकता है, so these employees can focus more to the productive activities and customers. अब गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती है पता है, अपने एम्प्लॉयज को क्या बोलते हैं, देखो भाई तुम्हारे टाइम पे आओ, तुम्हारे टाइम पे आओ. मैं क्या कह रहा हूं आपको समझ में आ रहा है, राइट? अब एक स्कूल में एक टीचर काम करता है तो उसको एक पर्टिकुलर टाइम पे आना पड़ता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे उसको छुट्टी मिलती है. बैंक में अगर काम करता है तो पर्टिकुलर टाइम पे आना पड़ता है, जाना पड़ता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे बन जाता है. और इंसान को वो चीज पसंद ही नहीं है, टाइम पे आना टाइम पे जाना, तो इससे क्या होता है वो बन जाता है, उसको इंटरेस्ट खत्म हो जाता है. अब इन लोगों को क्या बोला है, अब अपने टाइम पे आओ, हमें सिर्फ काम से मतलब है. तो लोग क्या करते हैं, अच्छी तरीके से अपना काम कर सकते हैं, उनके पास टाइम बहुत अवेलेबल है, अपना घर का काम भी संभाल सकते हैं. और दूसरे बच्चों का एजुकेशन ये सब वो लोग देखते हैं, फीस भरना, बच्चों को स्कूल से ले जाना, सब कुछ छोटा मोटा जो भी काम होता है ना कंपनियां देखती है. एचआर डिपार्टमेंट होता है इनका. एचआर डिपार्टमेंट का फुल फॉर्म पता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट. तो ये सब ह्यूमन का रिसोर्सेस को डेवलप करना, राइट? रविंद्रनाथ टैगोर की बहुत अच्छी एक पोएट्री है मुझे याद आ रही है, आपको पता है, इफ यू फील फ्री योर हेड्स विल बी ऑलवेज हेड हाई. मतलब अगर आपका माइंड फ्री रहेगा, आपका दिमाग बहुत ऊंचा रहेगा, सोच सकता है, राइट? हम अपने दिमाग में बहुत सारी चीजें रख के काम करते हैं तो क्या होता है, हमारा माइंड डाइवर्ट, जैसे कि अपना कंप्यूटर हो या अपना मोबाइल हो, बहुत सारी चीजें एक साथ डाल देते हो तो क्या हैंग हो जाता है, बंद हो जाता है. तो वैसे ही अपना दिमाग भी है. तो बिजनेस वाले तो बहुत दिमाग रखते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, छोटा मोटा काम 50-60% 70% छोटे मोटे काम होते हैं, वो सब किसको देते हैं, भाई तू संभाल, मुझे सिर्फ कितना संभालना है, 40% काम संभालना. इससे वो लोग अपने मेन काम पे फोकस करते हैं, प्रोडक्शन के काम पे, मार्केटिंग के काम पे, सेल्स के काम पे, बाकी जो मेन काम है उसको फोकस करते हैं, है ना? तो व्हाट वी कैन से, बीपीओ reduces the workload of the employees of the company, right? So they get more time to invest in the productive activities of the customers. देखो भाई मेन चीज तो कस्टमर है. कस्टमर अगर आपका सेटिस्फाई नहीं होगा, आप कितना भी हाथ पैर मारो उसका कभी फायदा नहीं होगा, है ना? कस्टमर सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको फायदा होना चाहिए, उसको लगना चाहिए हाँ मुझे फायदा हो रहा है, तभी वो आपके साथ रहेगा, नहीं तो और कहीं चला जाएगा. चलो अब क्या वर्ड है, कॉस्ट कटिंग. नाउ व्हाट इज कॉस्ट कटिंग? कॉस्ट कम करना, कॉस्ट को कम करना. जैसे कि ये रेलवे है, रेलवे नहीं सॉरी एयरलाइंस है, राइट? जैसे कि अपने इंडिया का सबसे बड़ा एयरलाइन कौन सा है बताओ, बोलो. इंडिगो, इंडिगो एयरलाइन, एयर इंडिया नहीं, इंडिगो. दूसरा बोलो स्पाइस जेट. तो अब ये लोग क्या करते हैं, जब आपको टिकट लेना हो ना, अब रेलवे में क्या होता है, रेलवे साइड पे जाना पड़ता है ना? कितना बोर लगता है, एक एक करके फॉर्म भरो, ये करो वो करो. और यहाँ पे आप कोई भी .com पे जा सकते हो, ट्रैवल माई ट्रिप में जा सकते हो, traveling.com पे जा सकते हो, इजीगो में जा सकते हो, कहीं से बुक कराओ आपकी सहूलियत के हिसाब से, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, राइट? तो लेकिन ये काम करने के लिए इजीगो को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, इजीगो का भी काम हो जाता है, इसका भी काम हो जाता है, कॉस्ट कटिंग कहते हैं इसको. तो क्या है ये, बिजनेस यूनिट कैन रिड्यूस एक्सपेंडिचर बाय आउटसोर्सिंग द फ्रंट ऑफिस वर्क लाइक बिलिंग, बिलिंग का काम, परचेसिंग का काम, डेटा एंट्री का काम और मार्केटिंग सर्वे का काम. अब इसके लिए बिलिंग के लिए एक बंदे को रखो भैया, परचेसिंग के लिए एक बंदे को रखो, डेटा एंट्री के लिए बंदे को रखो, मार्केटिंग सर्वे के लिए बंदे को रखो, और ये सब राइट क्या बोलते हैं पूरा मेस कर देते हैं ना, खिचड़ी बना देते हैं सब मिलके. ऐसा नहीं. तो किसी पर्टिकुलर एजेंसीज होती है, उस एजेंसी को काम सौंप दो ना तो आपको 100% रिजल्ट आएगा, राइट? आप डॉक्टर के पास जाके बोलते हो देखो भैया मेरी गाड़ी खराब हो गई है थोड़ा बना दो, तो डॉक्टर थोड़ी बनाएगा गाड़ी, उसको उसका नॉलेज नहीं है ना. तो आपको ऐसे एजेंसी ढूंढना है
जो बिलिंग का काम अच्छी तरीके से कर सके, उसका अच्छे तरीके से ट्रैक कर सके, राइट। कस्टमर से क्या मतलब है, कस्टमर को तो बिल से मतलब है। परचेसिंग, राइट, कितना स्टॉक कम है ज्यादा है, राइट, अच्छा एक कनेक्शन रख के कर सकते हैं। डेटा एंट्री, जितना भी डेटा है उसकी एंट्री करके, और मार्केटिंग सर्विस, राइट। तो क्या क्या देखा आज हमने, ये हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे, राइट। तो आज हमने देखा आउटसोर्सिंग क्या होता है, जब अपना काम, छोटा मोटा काम हम किसी ग्रुप को दे देते हैं अपने टाइम के हिसाब से, प्रिस्क्राइब टाइम, उसे आउटसोर्सिंग कहते हैं। आउटसोर्सिंग बहुत ज़रूरी है कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, जिससे कि अपना काम कम हो जाए और हम मेन एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। मैंने ड्राइवर का एग्जांपल समझाया हो सब। अब उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा बीपीओ। क्या है बीपीओ? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अभी तक आया नहीं वो वर्ड। बीपीओ का मतलब होता है कि अपना कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस अपने ही कंपनी से लेना या और किसी ग्रुप से लेना, वो काम कंप्लीट करके देना। मेन पर्पस ऑफ द कंपनी के भाई आउटसोर्सिंग, कॉल सेंटर करना, जिससे कि उसका खर्चा कम हो जाए। मेन रीजन ऑफ पॉपुलराइजेशन ऑफ आउटसोर्सिंग दैट ह्यूमन रिसोर्स that works are available, workers are lower rate। कहाँ पे लोअर रेट? चाइना और इंडिया जैसे। रिक्वायरमेंट्स ऑफ बीपीओ में हमने पढ़ा कि रिड्यूस द वर्कलोड, कम हो जाता है, राइट, डेली काम से। सच एम्प्लॉयज कैन फोकस मोर टू द प्रोडक्टिव एक्टिविटीज एंड कस्टमर्स। So okay friends, we are stopping here. Hope you enjoyed today's session. Thank you. Take care. God bless you.